Theory. Okay, theory. What is basic we have discussed in program, how to about the operators, how you will write the code, you know, basic codes we have discussed. Third one we have discussed print statement. Fourth we have discussed input method, how to take input from the user, you know. Then expressions. So these programs we will now we will do the this code on. Ideally, basically we will use one Python script. Okay. And second one is you have to we will discuss escape mode, इंटरेक्टिव मोड. ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे. ठीक है. सेकेंड थर्ड वन इज हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, दैट विल हाउ टू इंस्टॉल ऑल द थिंग्स. ओके. देन थर्ड वन विल वर्क ऑन स्पाइडर. Okay, that is easy and smooth platform to execute all the programs. So we will discuss, we will use this platform. Parallel I will tell you all the things, multiple platforms also. Okay, so let's see how to install. First of all, you have to open a browser. I have already told, everybody knows, but I am telling you from where you will get all the things. Okay, those who are not aware about this. Okay, then you can go directly on python.com, or you can go search Python download. Just you will search on Google or any of the platform. See, this window will appear, or it will searching on Google, then also this type of a thing will appear. We'll go to this download Python platform. That is a official platform. Which platform you are we are using? Python is a official. This is the platform, original platform on which we will work. Okay, here all the things are there: documentation, tutorials. Okay, download, source code, everything you will get over here. Okay, community, all the things. Okay, will go to download, or when you will open a screen, the first screen will appear that you will download. This browser and this web will automatically test your system, which application you are using. You will just choose which type of window you have, and different type of versions here described. Okay, and you will click on download. Here the latest version will be there, but think about it. I will tell you that don't download the latest version. Always download the one or two back one version in Python, because latest version sometime it will create a problem. Okay, but not on not every platform. Okay, so just I am telling you that download process. After that it will upgrade. जैसे एक last time error connectivity में problem आती थी because of लेटेस्ट वर्जन. एक अभी लास्ट ईयर में जब बच्चों को पढ़ाया था, तो उनके ओल्डर वर्जन पे वो सेम प्रोग्राम विल आर एग्जीक्यूटिंग, एंड ऑन द लेटेस्ट वर्जन द प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूटिंग. So that is the issue. Sometime it will come. So बहुत सारे लोगों से, many of the persons we have discussed, the teachers we have discussed, some related software persons I have discussed. So the result is that don't use. हाँ है ना. That's why I'm coming on that same topic. Okay, so after some time it will cleared, and then when you will go to by using CMD, you can go, but every person is not complete that much technical. So the easy way that you will download the little bit back older version, so that will easy for you. When you will click on that, save your file. Okay, or then here it will download. Okay, then when it will download, then you will execute. Okay,
So the thing is that you can same as you can download the Anaconda. Okay, Anaconda is a platform where from where you will get all the updates. Sorry, this is a main platform from where you will get all the simple platform, all the platforms whatever you will use. Okay, so this is very good platform. I'm also using it. Okay, this is the विंडो सी, ये ऐसी फ्रंट विंडो आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पाइडर, पाइच एंड जिप्टर, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, जब आप व्हेन यू विल इंस्टॉल एनाकोंडा, वो दैट आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल एनाकोंडा, यहाँ पे देखो इस तरीके का आता है 64 बिट। ठीक है, यस, डिसेबल्ड पाथ उसको इनेबल किया हुआ है क्या तुमने जब आप इंस्टॉल? चलो हो मैं भी देखता हूँ, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं भी देख लेता हूँ। अगर मेरे पे भी एरर आती है सेम तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाथ इनेबल करना होता है। हाँ, मैं समझ गया कहाँ पे आया, याद आ गया मुझे। ठीक है, तो वो आप उसको इनेबल करना है, पाथ इनेबल करना है। ठीक है, तभी आप CMD पे उसका यूज़ लिंक अप कर पाओगे ना। ठीक है, उसको इनेबल अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो आपको इजी वो हो जाएगा। सो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया कंप्लीट। ठीक है, सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन इट, एग्जीक्यूट। यहाँ पे अपग्रेडेशन का आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको अपग्रेड, मेरा पुराना वर्जन पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको अपग्रेड करता हूँ। अपग्रेडेशन में हो सकता है ना पूछे। ठीक है, जैसे आपको इनेबल करना होगा। ठीक है, अगर इसमें पूछ रहा है देन दैट इज़ गुड। ठीक है, अनइंस्टॉल करके या तो फिर इंस्टॉल करता क्लियर आएगा। अगर इफ़ ही विल आस्क, इफ सिस्टम विल आस्क, देन इनेबल करना होता है। ठीक है, ऑलवेज इनेबल द पाथ। सो देखो अब यहाँ पे क्या है कि नेट के स्पीड ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी स्पीड है वो। तो आप you have shared with me what's just a minute। ये तो ये अच्छा, ये वाला डिसेबल द पाथ लिमिट, इसको डिसेबल कर दो बेटा। या फिर कुछ भी मत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो भी एग्जीक्यूट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 260 कैरेक्टर से वैसे भी ऊपर कोई भी नहीं लेता, बाईपास इट। ठीक है, जस्ट क्लोज इट। ठीक है, डोंट डिसेबल, डोंट डू दैट। ठीक है, अगर डिसेबल कर दोगे तो पाथ की लिमिटेशन नहीं रहेगी, बस ये है। बाकी इनेबल भी रखो, ये अभी इनेबल है, क्लोज कर दोगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, लेट्स सी क्या हो गया। Just a minute। नहीं, कीबोर्ड है। ना सी इंस्टॉलेशन से जुड़ा हुआ है। Just a minute, it will install। After installation I will check। ठीक है, ना सी चलिए उसके तब तक हम लोग इंस्टॉलेशन होता है, तब तक हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइडर आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड आई हैव प्ले। जब स्पाइडर की स्क्रीन है,
ठीक है, दिस इज द स्क्रीन ऑफ स्पाइडर. ओके, सो हियर दिस इज द programming window. Okay, this is the programming section, code section. Okay, and this is the execution console. Here you will get the output, whatever the output you will get. Okay, and here when source section, console section will be there. So whatever the code or help and whatever the thing will come, so you will get over here. Okay, so you can say that it is a console window. Okay, it is a execution console. The output will be come here. Suppose that graph or plots, graphical representation, the numeric representation will come here, and the graphical representation will come here, over here. ठीक है, so this is the spider window. ठीक है, चलो वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद हम लोग तब तक हम लोग यहीं पे काम करते हैं. नाउ सी, दिस इज नॉट द स्क्रिप्ट, this is complete platform where you will do all the things. No need of adding anything, just install and use it. Okay, so let's see little bit program will going to execute, basic programs. Just first of all we will print. Are you able to see the screen? कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे? अब तो दिख रहा होगा, आई होप. प्रिंट, सबसे पहला हम लोग प्रिंट एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, प्रिंट हमने ब्रैकेट लगाया एंड द डबल कोड, विद इन द डबल कोड आई राइट हेलो इंडिया. ओके, चलो आई कैपिटल कर लेते हैं, INDIA इंडिया. हाँ, हेलो. नाउ सी, हमने यहाँ पे देखो प्रेस किया, एग्जीक्यूट नहीं है. व्हेन यू विल प्रेस प्ले, सॉरी रन एग्जीक्यूशन बटन, और यू कैन प्रेस F5. ठीक है, नाउ सी द आउटपुट विल बी हियर. ओके, हेलो इंडिया. ओके, सो you will get the output in this manner. Okay, this is a simple program which I have executed, simple statement which I have executed. Okay, now suppose that if I will write I is equal to, now here I is equal to 24. Okay, and then press enter. Here in this programming there is no semicolon, nothing is required. Okay, just write a code and execute. Now you will, if you want to print, then write print in the bracket I. Okay, in this way the value will print, and when you will execute the value again it is 24. Okay, then hello India already it is written. Okay, and suppose that I have written comment, I have told you to suppose that I have press hash. Okay, now when you will execute the value, just value will print. See, only 24. That this program has not executed. ठीक है, बस ये तब तक ये हो गया. देखो यहाँ पे नहीं पूछा, तो आपको हमेशा सेटअप वहाँ पे वो करना है, क्लोज करना है. ठीक है, चलो मैं इसको स्टार्ट कर दिया है, वो भी हम लास्ट में बता देंगे. कोडिंग का प्रोसीजर दोनों में सेम रहता है. वहाँ पे बस आपको जब सेल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो स्क्रिप्ट मोड और सेकेंड वन इज़ इंटरेक्टिव मोड, वहाँ पे दो अलग अलग होते हैं. दैट्स वाई थोड़ी सी दिक्कत होती है. बाकी इफ़ यू विल यूज़ स्पाइडर और पाईचैम or Jupyter, any of the platform, they are complete ideally, and no need to execute, no need to there is no that script mode or interactive mode. But in basically in Python official platform there is a script mode and one is executed mode. क्या now see, अब suppose that I want to print like the number of the value of I is, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा print the value of I is. ठीक है, मैं लिखा इज इक्वल टू, इसी में लिख दिया इज इक्वल टू एंड देन comma I. ठीक है, now see the value will be when I will execute it,
the value will be comes out. अब देखो first statement, the first statement which you have executed, print I. Here the value which you have printed, that is simple print I. Print I, when it is executed, only 24 will be is printed. And when you will when I have printed it with the statement, then same statement you can do with the different statement. Like here, when you will suppose that I have deleted it, and then print I. Okay, now इस स्टेटमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर इसको कमेंट में डाल देता हूँ. ठीक है, now see the value is I, the value of I is 24. It is the next statement will print. But here the two we have printed the statement, printed the value in different two lines. ठीक है, हमने यहाँ पे दो लाइन्स में different तरीके से वैल्यू को प्रिंट किया है, तो इट विल लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी कि हम इसको एक से स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं और अलग अलग स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं. आई थिंक अंडरस्टूड और नॉट. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा और मोल्ड करने की. सपोज दैट आई हैव एडेड अ वैल्यू 1 by 1. ठीक है, इफ़ आई विल ऐड 1 or 2 इन अ नंबर, इन द सेम नंबर, देन हाउ यू विल ऐड. एक से दो तरीके बताऊंगा मैं इसको. सपोज दैट आई हैव रिटर्न बाय यूजिंग अ सेकेंड वेरिएबल. ठीक है, I plus 2. ओके, देन हमने लिखा प्रिंट A. ठीक है, अब हमने यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल लिया और व्हेन यू विल एग्जीक्यूट इट, ठीक है, द आउटपुट विल बी 24. ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट एक और डाल दें छोटा सा. सपोज इसी को कॉपी कर लेता हूँ तो इजी रहेगा. नहीं, लिख लेता हूँ द सम ऑफ the value after increment is equal to semicolon comma. ठीक है, now see the value I is what? 24. the value of after increment is 26. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 by 2 इट द वैल्यू ऑफ आई. अब यहाँ पे एक यही तरीका नहीं है कि हम इसको सिर्फ यही एग्जीक्यूट करें, हम इसको डिफरेंट तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. इन द सेम वेरिएबल वी कैन यूज़ द सेम वेरिएबल टू इंक्रीज अ वैल्यू. ठीक है, इसी को हम इंक्रीमेंट कहते हैं. वो अगर हम आई वॉन्ट टू इंक्रीज बाई 2 बाई दिस वैल्यू ओनली, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 2. ठीक है, प्लस 2. ठीक है, नाउ इफ आई विल प्रिंट आई, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा पूरा. ठीक है, देन हियर सी हाँ देखो, अब द फर्स्ट स्टेटमेंट था द वैल्यू ऑफ आई इज 24, द वैल्यू ऑफ आफ्टर इंक्रीमेंट 26. इसको थोड़ा सा 3 4 कर लो तो इंक्रीमेंट समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ सी the increment in the value of after increment is 26 and the value of here. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट एट ऑल. ठीक है, नॉट अ सिंगल डिफरेंस. थर्ड चीज़ बताता हूँ अभी आपको. हम एक स्टेटमेंट को यू कैन राइट अ सेम स्टेटमेंट इन डिफरेंट मैनर बट यू हैव टू रिमेंबर द वे शुड बी करेक्ट. ठीक है, देन ओनली द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली, अदर नॉट. ओके, नाउ इफ यू राइट सेम स्टेटमेंट print in here only +4 +5 कर लेते हैं. ठीक है, now see the difference. now it is executed. see 28 + 5 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखिए पहले क्या थी वैल्यू आई की 24 थी, फिर ए की चेंज हुई लेकिन आई की चेंज नहीं हुई. ठीक है, बट हेयर आई हैव टेकन सेम वेरिएबल. ओके, दैट्स वाई इट विल चेंज्ड by 4. तो लास्ट वैल्यू क्या हुई 24 की आफ्टर 26 आफ्टर 24 it is 28. okay, in the same if you want to increase the same variable by any number then you can use same variable. Rather if you don't want to increase
change the value of the same variable, then don't use the same variable, use the different variable. एक और तरीका बताता हूँ जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया था. You can write like this: a plus is equal to 10, I plus is equal to 10. If you want to print then print, ये आप if you will use this statement, then you have to use the same manner. Okay, now see, 33 plus 5 10, sorry, I plus 5 33, I plus 5 33. अब देखो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करो. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हम ये चेक करेंगे कि इट इज़ करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो इसको हम ड्राई रन कहते हैं. ठीक है, देखो पहले क्या, अब स्टेटमेंट देखो ऐसा, इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ड्राई रन का. ठीक है, अब यहाँ पहले वैल्यू क्या थी, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं नाउ सी, अभी हमारे पास वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू आई की थी 24. ओके, द वैल्यू ऑफ आई इज 24, and now the value of, when you will print it, then it is 24, then a is equal to 24, I plus 24 plus 2, I plus 2, then the value will be a, value of a is 26. Now in this statement here, third statement, I is equal to I plus 4, when I have uses this I is equal to I plus 4, then the value is what, I is equal to I plus 4 means 24 plus 4, that is 28. Okay, now third is same, I have printed, so not required, then I have defined I plus 5. Okay, ये डायरेक्ट प्रिंट किया, तो ये वन टाइम, यहाँ पे इट इज़ नॉट चेंज्ड. ओके, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो ये तो नॉर्मली प्रिंट कर देगा. आई की वैल्यू थी 28 प्लस 5 33. ओके, बट व्हेन यू विल यूज़ दिस आई प्लस इज इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं प्रिंट होगी, this value will not take. ठीक है, will not take this value. Why? Because it is a one time value, one time change. ठीक है, यहाँ पे it will not fix change. ये जब हम ऐसे statement define करते हैं, when you will define this type of these type of statement and this type of statement, then it will be change will be fixed. ठीक है, और ये हमारे इस वेरिएबल का भी डेटा चेंज कर देगा. ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब भी when you will use this type of a statement will print, ठीक है, with print, so in that case the value will not change permanent. But here I have uses this, so the value will be used by, last value क्या थी 28, so 20 I is equal to 28 plus 10, so is equal to 38. Okay, now I have printed I, so here 38. So now program clear? किसी कोई डाउट? नो. ओके, नाउ सी, अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम मोर वेरिएबल्स. ठीक है, अब हम कुछ और वेरिएबल्स की बात करते हैं, इंक्रीज करते हैं स्टेट थोड़ा सा. ये हमारे पास, हम एक और वेरिएबल लेते हैं, a इज इक्वल टू 25. ओके, नाउ suppose that I want sum of these two values. ठीक है, तो क्या हमने किया, हमने just I have taken s is equal to I plus a. Okay, now I have print a s, sorry. ठीक है, इसको हम इस तरीके से when you will execute, तो the sum is 29, but it is not clear. यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये अगर बड़ा प्रोग्राम होता तो what is it, अगर आउटपुट आता है और किसी पर्सन को 49 बता दिया जाए, ये 49 आउटपुट है, then how the person will judge it is actual 49 for how it is come. तो हमने यहाँ पे, that's why we will use a statement functions like this. The sum of two values. ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी सकते हो I and A are
ठीक है। अब देखो, अब व्हेन यू विल प्ले रन एग्जीक्यूट दिस, द सम, सॉरी SUME हो गया, सम ऑफ टू वैल्यूज A एंड सॉरी I एंड A था R49। ठीक है, सही कर देते हैं I एंड इसको सही कर देते हैं। नाउ सी द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट द सम ऑफ टू वैल्यूज I एंड A R49 दिस। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर कि हम इसको छोटा सा प्रोग्राम को हमने प्रॉपर सम कर दिया। इसका एक और तरीका है व्हेन इफ़ यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, इसका सिर्फ यही तरीका नहीं है कि हम सिर्फ इतना करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर, इसको हमने लिखा इस तरीके से I प्लस A। ठीक है, अब हम व्हेन यू विल एग्जीक्यूट लाइक दिस, देन सी आउटपुट में कोई फर्क आया? नो डिफरेंस। आई हैव यूज्ड अब वन मोर लाइन, बस इतना हुआ हमने और इससे। बट यहाँ पे क्या है कि इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू यूज दिस स्टेटमेंट, ठीक है, in any if you want to use this statement any other place, then this value any other place, then it will not possible। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनीबडी? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, एक स्टेटमेंट के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि द स्टेटमेंट विच आई हैव टेकन, द स्टेटमेंट विच यू हैव गिवन, हमने यहाँ पे वैल्यू दी है I इज इक्वल टू 24, A इज इक्वल टू 25। ओके, सपोज दैट इफ आई वांट टू यूज, if you want to use more different values, suppose that, तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। B इज इक्वल टू B कॉमा A इज इक्वल टू C ले लेते हैं, डिफरेंट वैल्यूज B कॉमा C। तो यहाँ पे नंबर्स हमने दिया 10 कॉमा 14, 4, चलो ठीक है 44 ले लेते हैं। नाउ व्हेन यू विल प्रिंट B comma C, now when you will execute, the values of B is 10 and C is 44। ये तुमने बताया था, याद है? सबको याद है? ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर टू डिफाइन two values in two different variables। ठीक है, same as suppose that if you want to define one value to the multiple statement, multiple variables, like लिखा I is equal to I comma I is equal to B is equal to C is equal to 13। ठीक है, अब if you want to print, now if you will print, तो हमने क्या करेंगे, suppose that print I comma B comma C। ठीक है, now if you will print, then it will goes to like this, see 13 13 13। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आई, ये सेम वैल्यूज़ आई हैव डिफाइंड टू द different variables। okay, so when you will define when you initialize, assign the value, then at the time you have to remember that which type of a code, which type of a function, which type of a methods you are using, which type of a process you are using। okay, so in that, at that time you have to remember। clear? Yes or no? Or not? Yes or no? okay, so now some more instances I'm going to take। तो यहाँ पे अगर हमें सेम वैल्यू, अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंट हमने लिखा
वैल्यू 1 हमने लिखा कॉमा ए कॉमा, ये कल वाला जो प्रॉब्लम थी वो भी यही बता दूंगा, इसमें आ जाएगा 2 कॉमा सी कॉमा वैल्यू 2 3 कॉमा 5 सी और क्या था आई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ डिफाइन करी। ठीक है, जो ऊपर हम आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इनिशियलाइजेस अबव। तो यहाँ पे हम इफ यू विल डिफाइन दिस वैल्यू देन सी द वैल्यू 1 25, वैल्यू 2 13, इनवैलिड बता रहा है। ये रुको 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 रुको, ये डबल को लगा हुआ है। ठीक है, रन करेगा, कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे तो वैल्यू जो डिफरेंट हो गई, 2 वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई। अब डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से प्रिंट करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन वैल्यूज़ पे कैलकुलेशन करना। हाउ यू विल डू द कैलकुलेशन, डेटा टाइप को चेंज करना और डेटा टाइप इनपुट लेना। ठीक है, नाउ सी if we want to print the data type, suppose that if I want to print a value, print a data type, ठीक है, change the data type in that। हमने एक चीज़ बताई थी टाइप, पहले तो हम लोग बात करते हैं टाइप की। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट, अगर हमें किसी डेटा का टाइप प्रिंट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं टाइप विद इन द ब्रैकेट बी। ओके, ठीक है, नाउ व्हेन यू विल एग्जीक्यूट देन सी class int, the value of class is int। ठीक है, means data type of class is int। suppose that if I will define a value, ठीक है, define a value, पहले हम लोग बात करते हैं कि if I want to input the value, ठीक है, from the user, हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं a और any number n is equal to, ठीक है, input int, ठीक है, and then bracket, then input, okay, then bracket, then double quote। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एनी स्टेटमेंट, और अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, नो स्टेटमेंट विल कम। ओके, इफ़ यू वांट टू राइट अ स्टेटमेंट, अब जैसे हमने कहा कि सपोज इसी को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट एन करते हैं, देन प्रिंट एन, ठीक है, अभी हमने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा, नो स्टेटमेंट नथिंग। ठीक है, आई हैव रिटन दिस जस्ट अ वैल्यू। ठीक है, सी अब वो, ठीक है, 25 सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर प्रिंट हुआ, 25 एंटर किया और 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, इफ़ आई वांट टू राइट, अब ऐसे पता नहीं चलेगा फॉर इन दिस केस nobody can understand which type of a value will going to enter। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आप किसी को दोगे तो इन दैट के एट द टाइम वी डोंट नो ना विच टाइप ऑफ वैल्यू, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट, एक कमेंट, एक स्टेटमेंट हमें देना होता है। तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं एंटर एनी इंटीजर। ठीक है, तो इन दिस केस वैल्यू व्हेन यू विल टाइप, तो अब देखो क्या रहा है, एंटर एन एनी इंटीजर, तो हमने लिखा 48 द वैल्यू विल प्रिंट। ठीक, ये एक इनपुट लेने का तरीका हो गया। बट सपोज दैट इफ़ आई विल डिफाइन विदाउट इट, ठीक है, अब हमें सपोज दैट फ्लोट लेना है। ठीक है, तो हमें इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और हमने लिखा इसको फ्लोट, FLOAT। ठीक है, फ्लोट। अब जब वैल्यू इनपुट करोगे और प्रिंट, सॉरी एन की जगह दूसरा लेते हैं, एम ले लेते हैं, एम। ओके, नाउ प्रिंट, ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे इंटर नंबर 58
एंटर नंबर 25, ठीक है। हमने एंटर 25 किया बट द वैल्यू विल बी 20, वैल्यू इज 25.0। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि हेयर द वैल्यू व्हेन यू विल डिफाइन, ठीक है, दैट इज इंटीजर, द बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इंटीजर एंड हेयर द बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, फ्लोट कर दूँगा, इंटर द फ्लोट, ओके। सो हेयर now see again 85, 95, ठीक है। now see ये 85 it is integer and it is, अब अगर स्ट्रिंग लेना है सपोज ये तो फ्लोट इंट कोई भी डेसिमल लॉन्ग इंटीजर कोई भी आप डेटा टाइप ले सकते हो। नाउ सपोज दैट इफ आई वांट टू प्रिंट स्ट्रिंग str सपोज दैट मैंने लिया इसको, सॉरी strf इज इक्वल टू, अब इसमें हम कोई भी डेटा टाइप नहीं लगाएंगे, जस्ट इनपुट लिखेंगे, इनपुट इट इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट एंटर योर नेम। नाउ सी एंटर योर नंबर 25, 48, ठीक है। नेम इनपुट करेंगे तो गौरव, प्रिंट किया नहीं हमने तो प्रिंट आएगा नहीं, when you will print stf so the value when you will print it, a statement here 47, 55, 55, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू प्रिंट करते हैं एंड यू विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। तो जब भी आपको वैल्यूज़ ना दी जाए इन अ प्रोग्राम, व्हेन एनी एग्जामिनर विल गिव यू द प्रोग्राम, इन दैट केस द आउटपुट विल बी दिस, ठीक है। समझ आया, नहीं आया, ठीक है। नाउ सी my laptop battery is going down. Now see when I will close now, अब थोड़ा सा पाइथन जो इसका प्लेन प्लेटफॉर्म अभी हमने इंस्टॉल किया था उसको देखते हैं। पाइथन नाउ सी यहाँ पे देखो एक आइडियली है एक पाइथन, दिस इज़ द CMD कमांड टाइप होता है, ब्लैक स्क्रीन खुल के आती है, ठीक है, एंड दिस इज़ आइडियली, लेकिन when you will open by default it will comes automatically as a script mode, in a script mode, ठीक है। when you will execute it तो in that at that time open it that by default it is a script mode और script mode में हमें कोड करना होता है, ठीक है। but when if it, that when you are going to start तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप script mode में ही काम करें, तो दैट इज़ इजी और आपको क्लियर चीज़ें होगा। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, अभी मैं लिख ही रहा था हेलो, ठीक है, एट द सेम टाइम यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। नाउ सपोज दैट मैं बता देता हूँ कि इसको स्क्रिप्ट मोड में कन्वर्ट किया। सपोज दैट आपको इसको व्हेन यू इफ यू वांट टू कन्वर्ट द सेम प्रोग्राम विदाउट एनी एक्सटेंशन एंड ऑल, तो same mode of the program of the cell in interactive mode, then you will write a code, import space code, enter code dot interact bracket local is equal to local, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, ठीक है। नाउ देखो, नाउ इट इज़ इन द इंटरेक्टिव मोड, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे लिखा है हेल्प कॉपीराइट क्रेडिट्स लाइसेंस फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस मतलब इस कोड से आप इंटरेक्टिव मोड में इसी स्क्रीन को इंटरेक्टिव मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, समझा।
बाकी आप कोशिश करिएगा कि अभी इंटरेक्टिव मोड ही सॉरी सेल प्रोग्रामिंग ही आइडियली प्लेटफॉर्म नॉर्मल प्लेटफॉर्म यूज़ करिएगा। एक तो आपके लिए आसान होगा, इजी होगा, और यू विल लर्न मोर। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा अभी। ठीक है, फॉर बिगिनर्स दोज हु आर अवेयर अबाउट द प्रोग्रामिंग दे कैन यूज स्पाइडर एंड ऑल। ठीक है, समझा? तो दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कल जो अभी आप इस ऐसे ही प्रोग्राम छोटे छोटे सम ऑफ द नंबर्स, एडिशन ऑफ द नंबर, डिवीज़न ऑफ द नंबर, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम्स आप कोशिश करिए करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास में from tomorrow I will start a main programming section, that is what conditions and main programs again, conditions and loop, then while, for loop and while loop, if for and while कल हम लोग करेंगे। ठीक है, जो भी जितना भी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।